जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीनाम संकीर्तन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फर्स्ट कैंटो 6 चैप्टर टेक्स्ट 36। सर्वं तदितमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ। जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्। सर्वं तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ। जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्। सर्वं तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ। जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्। सर्वं तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ।
रहस्यं मे जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम् भवतश्चात्मतोषणम् सर्वं तदिदम् आख्यातं सर्वं तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यं मे भवताचात्मतोषणम्. Word to word meaning. Sarvam, all. Tat, that. Idam, this. Akhyatam, described. Yat, whatever. Prushta, asked by. Aham, me. Tvaya, by you. Anagha, without any sense. Janma, birth. Karma, activities. Rahasyam, mysteries. Me, mine. Bhavata, yours. Cha, and. Atma, self. Toshanam, satisfaction. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki translation. O Vyasdev, you are freed from all sins. Thus I have explained my birth and activities for self-realization. As you asked, all this will be conducive for your personal satisfaction also. Purport. The process of devotional activities from the beginning to the stage of transcendence is all duly explained to satisfy the inquiries of Vyasdev. He has explained how the seeds of devotional service were sown by transcendental association and how they gradually develop by hearing the sages. The result of such hearing is detachment from worldliness. So much so that even a small boy could receive the death news of his mother, who was his only caretaker, as the blessing of God. And at once he took the opportunity to search out the Lord. A sincere urge for having an interview with the Lord was also granted to him. Although it is not possible for anyone to see the Lord without mundane eyes. He also explained how, by execution of pure devotional service, one can get rid of the futile action of accumulated work, and how he transformed his material body into spiritual one. The spiritual body is alone able to enter into the spiritual realm of the Lord, and no one but a pure devotee is eligible to enter into the kingdom of God. All the mysteries of transcendental realization are duly experienced by Narad Muni himself, and therefore, by hearing such an authority, one can have some idea of the result of devotional life, which are hardly delineated even in the original text of the Vedas. In the Vedas and Upanishads, there are only indirect hints to all this. Nothing is directly explained there, and therefore Srimad Bhagavatam is the mature fruit of all the Vedic trees of literatures. Om Agyantimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Guruve Namah Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagarajatan Sagana Raghunatham Nitam Tam Sajivam Sadavaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakam Nitam Cha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamini Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pachadeshitarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratute Nama He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rushabhanusute Devi Pranamami Haripriya Vanchakalpataro Vaishya Kripa Sindhubheva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So I seek blessings of all the Vaishnavas before speaking on the Bhagavatam. So today we are reading from first canto, 6th chapter, 36 shloka. So this 36 shloka is the conclusion part of this chapter. That how Narad Muni concludes his teachings or guidelines he gave to the Vyasadeva. So in this shloka, specifically 4 words comes that is about Anaga. He tells that, oh, you are sinless. Then he tells that, okay, I am telling you my own story, Akhyatam. And the story is about Janma Karma. This is about my own activity, but that will benefit you. How much it will benefit you? It will benefit that it will give you Toshanam, Atma Toshanam. So the reason why I am telling you that he's telling, Anaga, you are sinless. And that's why he's saying that I am telling my own birth and activities to you. And in the purport, Prabhupada explained that how Bhagavatam giving the instruction very directly, unlike the Vedas and Upanishad. And what it contains the Akhyayika. Even Bhagavatam, we know that it contains the story about Lord and his devotees, about Lord's his birth and activities. As Janmashtami is coming, this famous shloka of Bhagavad Gita we recite, that is same Janma Karma. That Janma Karma cha me divyam. So Lord's Janma Karma is divyam, and devotee's Janma Karma is also divyam. That he is telling here, Narad Muni. And not that, okay, if we hear about Lord, then only it will give Atma Toshanam. Even we hear about devotee, that will also give Atma Toshanam. That is telling in this shloka. And also in purport, Prabhupada mentioned that we can spiritualize the subject matter. Subject matter can, and basically is talking about the body. We can spiritualize body. So very often Prabhupada used to give example of iron rod. If it put in a fire, it act as a fire. It becomes fiery. So how can we do that? That Prabhupada mentioned in the middle of the purport. So we will discuss about this how the qualification for being Anaga, how we are at least for me, I can say that I am not sinless. So Anaga qualification, so how we can take it for our own understanding. Then at the end of the purport, Prabhupada explained about how Bhagavatam is a direct glorification, that we will discuss. And also we'll discuss about the Akhyayika, how the telling our own experiences. Narad Muni is telling his own experiences. So how much it is applicable to you? How much generally devotee don't want to tell about ourselves? So how we can see that? So starting with the Bhagavatam, the how Bhagavatam is explaining the subject matter very clear, direct. तो थोड़ा सा मैं हिंदी में बोलने का प्रयास करूं. तो भागवतम में बहुत सारी चीजें डायरेक्ट बताई गई है, और उसके साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ वहां पे सत्य बताया गया है, उसके साथ बहुत सारे भक्तों के साक्षात्कार भी बताए गए. और वो भी जब भक्त खुद अपने साक्षात्कार भागवतम में बताते हैं, तो वो ज्यादा ही समझने में इजी हो जाते हैं. भागवतम खुद ही एक प्रभुपाद जैसे परपोर्ट में बताते हैं मैच्योर फ्रूट ऑफ नॉलेज. और उसके साथ सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ये भक्तों के मुख से वो ज्यादा ही समझने में इजी हो जाता है. तो भक्तों से हम जब सुनते हैं, भक्तों से मतलब जब परंपरा में सुनते हैं, तब वो सभी चीजें एक साक्षात्कार के साथ आती है. तो तीसरे अध्याय में
सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि शब्द योनिना, तो शब्द योनिना ऐसा ऐसा क्यों बोला गया है? तो उसमें बताते हैं कि ये सब चीजें भागवत जो है वो भक्तों को साक्षात्कार मिलके आगे जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो ब्रह्मा के हृदय में उसका साक्षात्कार हुआ। ऐसा नहीं कि उनको एक माइक सिस्टम था या किसी जूम पे ऐसा कुछ नहीं था। वो डायरेक्ट वो द नॉलेज इज ट्रांसफर्ड, नॉलेज कहाँ से ट्रांसफर हुआ? हृदय में ट्रांसफर हुआ। तो यानी ब्रह्म ब्रह्म हृदय आदि कवये। और जब तीसरे स्कंद में भी जब विदुर और मैत्रेय बोलते हैं कि शब्द योनिना, तो शब्द योनिना ऐसा क्यों है? क्योंकि शब्द में सिर्फ शब्द नहीं है, शब्द के भी 4 स्तर रहते हैं। तो उससे वो ज्ञान उन्हें उन्हें मिला, ज्ञान और साक्षात्कार। भागवतम खुद ही एक एक्चुअली महान अमलम पुराण है। 12वें स्कंद के 13वें अध्याय में 18वें श्लोक में बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंस्य एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम तच्छृण्वन् सुपठन् विचारण करो भक्त्या विमुच्य नरा। तो भागवतम में ही जो सब भक्तों की रियलाइजेशन है, पारमहंसम एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते, उसमें परमहंस लोगों का एक साक्षात्कार है। और उसका तत्सृण्वन सुपठन, सुनवा, और सिर्फ सुनना नहीं, हम पठन भी करते हैं, विद्यापीठ भागवतम विद्यापीठ में करते हैं। क्योंकि ये सब जो भी हम सुनते हैं वो समझने को बहुत ही डिफिकल्ट है। जैसे 11वें स्कंद में 21वें चैप्टर में बताया गया है, भगवान बोलते हैं कि ये वेदों का ज्ञान समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट हो क्या बोलते हैं? कठिन है। तो एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत। ये ज्ञान कैसा है? ये शब्द ब्रह्म जो है ये सुदुर्बोधम है, उसका बोध होना डिफिकल्ट है, मतलब कठिन है। दुर्बोधम सिर्फ सिर्फ कठिन नहीं है, सुदुर्बोधम बहुत ही कठिन है। प्राण इंद्रिय मोयमयम, क्योंकि एक अलग अलग स्तर पे रहता है ज्ञान का। एक्चुअली हमारे आधुनिक युग में सिर्फ ज्ञान सिर्फ ओके, कुछ बोला बोला भी नहीं तो यूट्यूब का रिकॉर्डिंग, अभी तो सब जगह पे वही चल रहा है। इवन टीचर कुछ बोलता नहीं लेकिन उसका खुद का रिकॉर्डिंग है, या खुद का उसका भी नहीं होगा, वो बोलता है कोई ये लिंक पे जाओ उधर से सुन लो। तो वहां पे सिर्फ शब्द का हम रेफरेंस लेते हैं, ओके इतना इतना ये वर्डिंग है, ये नॉलेज है, ये सुनना है। लेकिन ये परपोट में 11वें स्कंद के 21 चैप्टर के 36 श्लोका के परपोट में प्रभुपाद के शिष्य समझाते हैं कि कैसा ज्ञान 4 लेवल पे रहता है। ज्ञान मतलब शब्द ही, शब्द जो बोलते हैं, जो वेदा में शब्द, ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तब उसमें 4 लेवल पे बोलते हैं। तो कौन से 4 लेवल है? परा, पश्यति, मध्यमा आणि वैखरी। तो वैखरी मतलब जो ज्ञान हम डायरेक्टली शब्द सुनते हैं, मतलब स्पीच पे, जो स्पीच से आता है वो स्पीच के फेज में रहता है। मध्यमा मतलब ज्ञान के फेज पे, इंटेलेक्चुअल। पश्यति मतलब मेंटल, मन में हम कुछ कल्पना करते हैं। और परा मतलब प्राण, प्राण के फेज पे वो ज्यादा ही सटल रहता है वो। और उधर के वो आधार चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, वो चक्र पे लेवल पे रहता है। तो ये ज्ञान मतलब शब्द जो रहता है वो 4 स्तर पे रहता है। उसमें से सिर्फ वैकारी हम थोड़ा बहुत समझ पाते हैं उसमें भी पूरा नहीं समझ पाते। बहुत बार अगर हम साइंटिस्ट के बीच में गए तो उनका कहना कुछ समझ में नहीं आता, तो वो ही समझ में नहीं आता है, तो वेदों का क्या कहना, मतलब वेदों के बारे में तो हम ज्यादा नहीं समझ पाते। तो ये जो ज्ञान है, जो भक्ति के, मतलब भक्ति के शास्त्र में दिखा गया है, वो बहुत ही परा लेवल पे रहता है। ऐसा बोलते हैं कि ओम, मतलब ओम का जो उच्चार है अ उ एम, मतलब 3। तो ये जब मतलब जनरली योगी रहते हैं वो ऐसा बोलते हैं ओम, और म के बाद में फिर परा साउंड चालू होता है, और उसमें आता है हरे कृष्ण महामंत्र। मतलब बहुत सारे योगी वो ओम का उच्चारण करते करते मतलब
उनका बहुत सारा आयु निकल जाता है, तो उसके बाद में फिर अगर पता चला तो हरे कृष्णा जपेंगे। तो क्योंकि ये जो रहता है वो परा परा साउंड रहता है, तो इसका भी निचोड़ मतलब पूरे वेदांत का वेदों का निचोड़ है वेदांत, वेदांत का भी सार रूप में है भागवतम। तो उसका नॉलेज हमें मिलता है, और वो भी जब भक्तों के मुख से सुनते हैं तो हमें कुछ ज्यादा समझ में आता है। नहीं तो भागवतम तो बहुत दिन था, लेकिन प्रभुपाद में ऐसा भागवतम दिया जो सबको समझ में आए, सिर्फ समझ में नहीं आए लेकिन उसका जीवन में हम उतार सके। तो लेकिन उसके लिए तो इधर बोल रहे हैं कि अरे तुम अनग हो, तुम सीनलेस हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम तो जब मैं पढ़ता हूँ तो कल मैं एक भक्त से बात कर रहा था, प्रभु जी देखो ये पहला क्वालिफिकेशन है, सीनलेस चाहिए। तो उनके नम्रतावश वो बोले कि अरे प्रभु जी मेरा तो पत्ता कट गया। तो ऐसा नहीं है, जैसे भगवत गीता में 3 जगह पे आता है अनघ अनघ शब्द का इस्तेमाल आता है। जैसे 15वें अध्याय में 20वें श्लोका में भी आता है कि कैसा भगवान बोलते हैं कि तुम अनघ हो। फिर 14वें अध्याय में 6वें श्लोक में भी आता है, और तीसरे अध्याय में तीसरे श्लोक में भी आता है। तो भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो अलग अलग योग से तुम कर सकते हो, ज्ञान योगेन, सांख्य योगेन, कर्म योगेन। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, लोगों का पहले से ही अलग अलग पाथ पे निष्ठा था। फिर वो बताते हैं कि अ, अ, ये 14.6 में तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनायम सुख संगेन बन्नाति ज्ञान संगेन चानगा। तो जब जभी उधर प्यूरिफिकेशन का बात आता है, शुद्ध होने का, तो पहले ही कृष्ण बता देते कि आप अनग हो, आप सिंह से विरहित हो। और जब 15वें चैप्टर में 20वें श्लोका में कृष्ण बोलते, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद बुद्ध्या बुद्धिमान् स्यात् कृत्य कृतश्च भारत। तो उसके तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि अनघ का अर्थ है सिनलेस, पाप विरहित, निष्पाप। और जैसे भागवतम में कृष्ण की लीला में एक असुर आता है, उनका नाम है अघासुर, पूरा मतलब अग से भरा हुआ अघासुर। और उनकी बहन पूतना, उसका उनका भी नाम वैसा ही कुछ थे। पूत मीन्स कुछ पायस एक्टिविटी, पूतना कुछ भी नहीं है ऐसा। तो ऐसा पूतना। तो तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हाँ हम अनग चाहिए, सिनलेस चाहिए, हम हमारे कुछ भी ये नहीं चाहिए, क्या पाप नहीं चाहिए। लेकिन प्रभुपाद परपोर्ट में बताते हैं कि भक्ति ऐसी है, डिवोशनल सर्विस ऐसी है जो शुरुआत करते ही आदमी पापों से मुक्त होता है। लेकिन उसके साथ उसको दो चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जिसके वजह से उसके फिर से कृष्ण भावनामृत में से फिर से नीचे नहीं जाएगा, तो पतन नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए दो चीजें बोलते हैं, डिजायर टू लॉर्ड और मटेरियल नेचर। तो प्रभुपाद 15वें चैप्टर के 20वें श्लोक में बताते हैं प्रपट में कि द फॉल डाउन इज कॉज्ड बाय द डिजायर टू लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर, द फर्स्ट फॉल डाउन, एंड दस गिव्स अप ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। जब जब भक्ति में रहते समय हमें जब इच्छा होती है, तब पहले हमें जब इच्छा आती है तब हम भक्तिमय कार्य को छोड़ देते हैं, वो पहला फॉल डाउन है। और दूसरा है जब हम इच्छा अ, जब वो कुछ चीजों के ऊपर प्रभुत्व करने की इच्छा बढ़ती है, द वीकनेस ऑफ हार्ट एंड दैट इंक्रीजेस द प्रोपेंसिटी टू लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर, ही बिकम्स अटैच्ड टू मैटर एंड पोजेशन ऑफ मैटर। तो पहले वो उसके प्रति आकर्षित होता है और बाद में उसको अटैच होता है। जैसे राधेश्याम प्रभु एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक कभी कभी एक कुत्ता रहता है, जैसे अभी आप आते समय देखा होगा, वो तार तार का रोड बना है ना, तो वो देखते ही उसको लगा अरे बहुत चमक रहा है, बहुत कुछ तो अच्छा है। तो वो जाता है, और कभी अगर एक्चुअल प्योर टार हुए
तो ऐसा लिक्विड जैसा दिखता है। तो वो जाता है और देखता है अरे क्या है, तो एक पैर से ऐसा टच करता है, तो पहले उसको आ गया डिजायर टू एंजॉय, तो कुछ इच्छा आ गई, अरे मुझे चाहिए, और उसके वजह से वो उसके पास गया और आसक्त हो गया। और बाद में उसको लगता है अरे ये निकल नहीं रहा है, कितना निकल निकल नहीं रहा है, तो क्या करता है, एक पैर से नहीं निकल रहा, दूसरा पैर निकल लगाता है, तो दूसरा पैर भी चिपक जाता है, फिर तीसरा पैर लगाता है फिर वो भी चिपक जाता है, फिर चौथा पैर लगाता है, वो भी चिपक जाता है। फिर उसको लगाता है कैसे, तो अरे बॉडी हिलाने का प्रयास करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर अपना मतलब छाती छाती लगाता है, वो पूरा और चिपक जाता है फिर उससे। तो इस तरह से प्रभु जी बोलते हैं कि पहले उसको आ गई इच्छा, अरे मैं कुछ तो भोग करूं, और करने के बाद फिर वो पास में जाता है और उसको बोलता है मैं उसे नहीं, इसके ऊपर कंट्रोल करूंगा, तो कंट्रोल करने की इच्छा करता है और उसमें वो फंस जाता है। तो ये दो तरह से वो अपने नॉर्मल जीवन से अलग हो जाता है। वैसे तो क्या इधर उधर भटक के कुछ भी खा सकता था, लेकिन अभी नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या सुनना है, आख्याता, श्लोक में आता है कि आख्याता, तो भगवान के बारे में या भगवान के भक्त के बारे में, यहाँ पे जैसे नारद मुनि बोलते हैं कि मैं मेरी आख्यायिका सुन रहा हूँ। भगवान ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि जिसके लिए उनकी कथा सुनी जाए। जैसे दामोदर लीला में बोलते हैं कि इति दृक्ष लीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जनतम आख्यापयंतम, वहां पे आख्यायिता शब्द आता है। तो खुद की लीला रचते हैं और उसमें भक्तों को डुबा देते हैं ऐसा बोला गया। तो कभी कभी मतलब अगर हम भक्ति में कुछ प्रगति करते तो भक्तों को लगता है कि अरे बोलना नहीं चाहिए। जैसे 3-4 दिन पहले मैं एक प्रभु जी से बात कर रहा था, तो उधर वो बोल रहे थे कि कैसा है ना, ऐसा तो हमें अभी तक सुना है कि कभी जो भी हमारे साथ हो, भक्ति का कुछ करे तो वो बताना नहीं चाहिए। मतलब उनको पहले से ही ऐसा ही सुना था उन्होंने किसी अलग मतलब लेक्चर में वगैरह। और वो कुछ अंश थे सही भी है, क्योंकि ऐसा बोलते गए कि अगर हम किसी को बताए अरे मैंने इतना किया, मैंने ये किया, तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है लेकिन भक्ति के बारे में ऐसा नहीं है, मतलब हम भक्तों को बताते हैं, वो भी अभी बहुत वो चल रहा है ना, हाउ आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, हम भक्ति में कैसे आए उसके बारे में भक्त हमेशा बोलते रहते हैं। तो उससे अगर भक्त दूसरे को प्रेरणा मिल रही, तो बताने में कुछ हल नहीं है, समस्या नहीं है। जैसे जब भक्ति तीर्थ महाराज बता रहे थे राधानाथ महाराज को कि आप आपके जीवन के ऊपर आप कैसे भक्ति में आए, कैसे आगे बढ़े, उसके बारे में लिखो। तो उनको बहुत ही अलग लगता है, मैं कैसे मेरे खुद के बारे में लिखूं। तो बहुत देर उन लिख नहीं रहते। फिर जब भक्ति तीर्थ महाराज ये दुनिया से गए, तब उसे जाने से पहले उन्होंने बताया कि आप मुझे वचन दो कि आप लिखोगे। तो महाराज ने लिखा और एक कोने में रखा उनके रूम में। तो एक बार दूसरे एक प्रभुपाद के शिष्य, शायद देवामृत महाराज, वो आए थे और उन्होंने देखा अरे एक ये किसके बारे में है? ओके, आपके बारे में ऑटोबायोग्राफी है। और उन बोले अरे आप उसे पब्लिश करना चाहिए। तो बोले नहीं नहीं, मुझे बोला था लिखने के लिए तो मैं पब्लिश क्यों करूं। तो लेकिन फिर वो बोले कि अगर ये आपके वजह से अगर बहुत सारे भक्तों को प्रेरणा मिल सकती है, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। तो उसी तरह उसी चेतना से उधर नारद मुनि बता रहे अपने शिष्यों को, व्यासदेव को, अरे कि मैं ऐसा था, फिर मैंने ऐसा भक्ति वेदांतों का संग किया। और ये परपोट में भी प्रभुपाद बताते कि संग करने से उनको इच्छा हो गई और उनसे सुनने से उनकी भक्ति बढ़ी। तो अगर कुछ है जो जिससे हम किसी का भक्ति में प्रेरणा दे सकते, तब वो बता सकते हैं, नहीं क्या? तो इतना तक कि नारद मुनि को ये भी नारद मुनि ये भी बता रहे थे कि अरे मैं दासी पुत्र था, मेरी माँ किसी की दासी थी, तो मुझे मालूम नहीं कि मेरे पिता कौन थे, वो भी बताने के लिए तैयार है। तो भक्तों के विषय में व्यासदेव भी जब अब लिख रहे हैं भागवतम, तो भागवतम लिखते समय उनको मालूम है, और या वो जो भागवतम है जो ऋषियों के बीच में, उनके खुद के शिष्यों के बीच में बताया गया है, तो उनको मालूम है कि अरे मेरा ही बारे में चर्चा हुई कि अरे मैंने पहले जो लिखा था वो इतना पूरा
भगवान का पूरा ग्लोरिफिकेशन गुणगान नहीं था, फिर भी वो बता रहे हैं। और वासुदेव बाद में भी वो खुद बताते हैं सुखदेव गोस्वामी को, तो खुद के बारे में अगर बुरा भी है तो भी वो बताने को पीछे नहीं होते, क्योंकि उससे दूसरे को प्रेरणा मिलती है। प्रभुपाद भी बहुत इससे बता देते कि ओ आई वॉज फर्स्ट टाइम डिफीटेड बाय माय गुरु महाराज। तो प्रभुपाद अपने खुद के पराजय के बारे में बताते थे और बहुत हंसकर बहुत खुशी से बताते थे कि मैं मेरे गुरु महाराज के सामने पराजित हो गया। तो इनको ये खुद के बारे में बताने की इच्छा क्यों हुई? क्योंकि व्यासदेव ने इंक्वायरी की, लेकिन ऐसी इंक्वायरी की, ऐसी पूछताछ की जो सबके लिए संतोष दे, सेटिस्फैक्शन दे। इसलिए हमारे भी इंक्वायरी वैसे होना चाहिए। भागवतम में श्लोक आता है, वासुदेव कथा कृष्ण पुंसा पुरुषान स्त्रीन पुनाति ही वक्तारम पृष्ठतम श्रोत्रम तत्पाद सलिलम था। जैसे गंगा से जैसे शुद्ध होते हैं, तत्पाद सलिलम, आपके पाद से जो पानी आता है उससे जैसे शुद्ध होते हैं, वैसे वासुदेव की कथा है, उसके बारे में प्रश्न पूछने वाला, वक्तारम उसका आंसर देने वाला, और श्रोत्रम उसके बारे में सुनने वाला, तीनों का शुद्धिकरण होता है। कभी कभी जब व्यासासन पे बैठते तो ज्यादा शुद्धिकरण हो जाता है, और कभी कभी सुनते समय अगर स्पीकर जब मेरे जैसा तो ज्यादा, उसमें ज्यादा और शुद्धिकरण हो जाता है। लेकिन एक्चुअली भागवतम ये भी बोलता है कि सटल लेवल पे भी शुद्धिकरण हो जाता है ऐसे। तो शिल प्रभुपाद बोलते हैं कि अरे हर कोई पूछ रहा है, ओके क्या क्या भाव है? हर कोई कुछ ना कुछ पूछताछ करते रहता है, जैसे शेयर मार्केट पे या इधर मार्केट में गया, इसका क्या भाव है, उसका भाव है। पूछने की टेंडेंसी हर एक में है, उसी को हमको परिवर्तित करना है। जैसे कल मैं पढ़ रहा था, प्रभुपाद का एक कोट था, enthusiasm इज नेचुरल टेंडेंसी, जस्ट वी हैव टू डायरेक्ट इट। तो प्रभुपाद बोल रहे थे कि अरे enthusiasm सब में है, उसको सिर्फ हमको एक दिशा देना है। और प्रभुपाद उदाहरण देते कि इंजन है तो वो चलेगा, मतलब इंजन में नेचुरली वो इंजन में दर दर चलते रहेगा, उसको हमें सिर्फ एक दिशा देना है। तो इंजन अगर उस जैसा लगाया हमने, जिस टॉर्क से और जिस गति से वो लगाया, उस उतना वो भागेगा, दौड़ेगा। तो इसलिए तो मैं वो सुन के बहुत मतलब प्रेरणा मिला कि अरे ऐसा नहीं कि कोई हतोत्साहित हो रहा है, मतलब उसका एक्चुअली उत्साह जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो उत्साह उसका भले इंद्रिय तृप्ति की तरफ लग गया है, ऐसा ऐसा हो सकता है। तो ये इंक्वायरी आना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से नारद मुनि बता रहे थे। एक भक्त था, उधर हम शुक्रवार को गए थे, तो वो बोल रहा था कि मुझे बहुत डर लगता है कि मेरा क्या होगा मेरे मृत्यु के बाद। तो अच्छी इंक्वायरी है कि अरे मृत्यु के बाद क्या होगा, तो उसकी वजह से उन्होंने फिर भक्ति चालू किया। एक एक आदमी था, उसको प्रश्न था, अरे ऐसा भी कुछ जगह है क्या जहाँ पे सिर्फ सुख हो, कुछ भी तकलीफ ना हो? उसने सॉन्ग सुना था मूवी का कि ऐसा भी जगह है जहाँ पे गम नहीं है, आंसू भी नहीं है। तो उसलिए उससे जीवन मन में इंक्वायरी आया, तो उसने वो सॉन्ग जिसने रचा है वो आदमी के पास भी गया। वो सिगरेट फूक रहा था, वो बोल रहा था बोलता, अरे मैंने ऐसे लिख दिया, तुम क्या मेरे पास आ गए। तो उसके बाद में वो एक इस्कॉन मंदिर में गया, और उसके पर उसको पता चला अरे ऐसा स्थानम है ऐसा जो तथा गानम नाट्यम गमन अपी किंतु प्रिय सखी। तो मतलब वहां ऐसा भी स्थान है जहाँ पे सिर्फ बोलना एक गीत में रहता है, और चलना भी एक हमेशा डांस में रहता है। तो ऑफकोर्स हमारे पास भी गीत है, भगवत गीता, भागवतम एक गीत में लिखा हुआ है, और वैष्णव गीत है, लेकिन उसमें हमें इतना रुचि नहीं आता। तो इंक्विजिटिवनेस चाहिए, और इंक्विजिटिवनेस भगवद गीता में कृष्णा बोलते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, उसमें से इंक्विजिटिव जिज्ञासु लोग, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ। जो मेरे पास आते हैं ये 4 चीजों के लिए, वो
वो क्या है, सुकृतुन है। इसलिए हम क्या करते, एक तो देखते हैं कि किसी को जिज्ञासा है, उसको भक्ति देने का प्रयास करते हैं, या उसमें जिज्ञासा डालते हैं। भक्त का बिहेवियर, भक्त का ये ऐसा रहता है कि उसके वजह से लोगों का जो भौतिक चीजों के ऊपर श्रद्धा है वो टूटे। और कुछ डाउट तैयार हो, किसके बारे में, अरे वो कुछ भी भौतिक चीजें नहीं करते फिर भी उनमें कैसे सुखी है। तो ऐसा डाउट जब आता है तो फेथ की शुरुआत हो जाती है, मतलब आध्यात्मिक उस श्रद्धा की शुरुआत हो जाती है। फिर वो पूछने लगता है। इसलिए तो हमारा काम क्या है, लोगों के बीच में भेद देना और डाउट भी देना, कि डाउट क्या, कि अरे हम विदाउट कुछ मटेरियल एसेट से रह सकते हैं। बहुत लोग इंक्वायरी करते हैं, लोग कहते हैं अरे दुनिया में जो सबसे अमीर लोग है वो दोनों का भी डाइवोर्स हो गया, मतलब ऐसा इसके बारे में इंक्वायरी करते हैं। तो इंक्वायरी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो भक्ति के मामले में करे तो वो ज्यादा रुचकर है। और इसलिए वो इंक्वायरी करे और उसके बारे में बोले, इसलिए भागवतम है। तो भागवतम का पूरा मतलब इंक्वायरी, हम जब ज्यादा इंक्वायरी करेंगे ज्यादा पढ़ने लगेंगे। लेकिन उसके लिए हमें एक नेचुरल भगवान के प्रति एक आसक्ति भी चाहिए। जैसे चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं कि व्रजवासी लोकेर कृष्णे सहज प्रीति, गोपालेर सहज प्रीति व्रजवासी प्रति। तो लोगों को भी कृष्ण के ऊपर सहज प्रीति है, और कृष्णा को भी व्रजवासी के प्रति सहज प्रीति है। और उसके वजह से उन्होंने, अगर किसी के प्रति हमें सहज प्रीति रहते थे, उसके बारे में सुनना हमें अच्छा लगता है, बार बार सुनते, 1000 बार सुनते। उनके बारे में सुनते रहते। और ये सुनने के वजह से ही हमारा भक्ति बढ़ेगा। तो इंक्वायरी नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो कैसे आएगी, सुनने से आएगी। तो दशम स्कंद के 7वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोका है कि हम जब सुनेंगे तभी हमें वो चीज रुचकर लगेगी। कोई बोलेगा अरे मुझे प्रभु जी कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आप सुनो। तो ऐसा एक श्लोका है। तो कल मैं सुन रहा था ब्रजवेरे प्रभु से, तो वो बोल रहे थे कि ये बहुत प्रैक्टिकल है। आप बोलेंगे प्रभु जी इतना टेंशन है, ये टेंशन है, वो टेंशन है, सुनने में कहाँ टाइम है। लेकिन ये सुनना हमको लग सकता है प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन यही प्रैक्टिकल है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी बढ़ रहे हैं और प्रॉब्लम भी बढ़ रहे हैं। इतने सारे सॉल्यूशन है लोगों के पास, लेकिन फिर भी लोग वैसे के वैसे हैं। तो इसलिए सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि कृष्ण के बारे में सुनना। तो ये श्लोका आता है दशम स्कंद में, यत् शृण्वतो अपयति अरतिर्वितृष्णा। यत् शृण्वतो मतलब जिसका सुनने से, अपयति अरतिर्वितृष्णा। मैं बोलेगा, कोई बोलेगा अरे मुझे इतना सुनने में रति नहीं है, रति नहीं है ना इसलिए सुनो। अरति वितृष्णा, उसका बेनिफिट है क्या, वितृष्णा, हमारे अंदर जो तृष्णा है वो चली जाएगी और कृष्णा के प्रति आकर्षण होगा। तो ये बेनिफिट है। फिर हम बोलेंगे नहीं प्रभु जी हम इतना शुद्ध नहीं है, इसलिए हम सुन नहीं पाते। तो क्या करो, ये सुनने से आपका सत्व बढ़ेगा, सत्वम च शुद्धेत। तो बोलेंगे अरे नहीं कितना सुनना पड़ेगा फिर सत्व बढ़ेगा, नहीं, अचिरेण पुंसा, बहुत जल्दी तुरंत ही आपका सत्वगुण बढ़ेगा। सत्वगुण बढ़ेगा तो हम सुनने में रुचि रुचि बढ़ेगी। तो सिर्फ सुनने में रुचि बढ़ेगी, सिर्फ सुनते रहने के नहीं, फिर भक्तिम हरो, फिर भगवान के ऊपर भगवान हरि के ऊपर भक्ति आ जाएगी। और क्या होगा, तत्पुरुषेच सत्यम, उनके पुरुष जो है, उनके पुरुष कौन है, भक्त, उनके साथ आपकी मित्रता या संबंध बढ़ेगा। तत्पुरुषे तो सत्यम तदेव हारम वदमन्य से चेत। ये और अगर आपको उचित लगता है, फिर बाद में वो बोलते हैं, मतलब परीक्षित महाराज बोलते हैं ये, अगर आपको उचित होते मन से चेत, आप मुझे बताओ। क्योंकि क्यों बताओ कृष्ण के बारे में, ये इतना सब बेनिफिट है, पहले ही बताते कि इतना बेनिफिट है इसलिए आप चालू करो। तो कृष्ण की बाल्य लीला सुनने के पहले ही वो बोलते हैं कि देखो अगर मैं सुनूंगा तो उससे मुझे इतना सारा लाभ होगा, इसलिए आप मुझे बताओ। फिर इतना सब बताओ तो उसमें फिर पहला क्या बताओ, इसलिए वो अगला श्लोका बोलते हैं कि पहले आप मुझे थोड़ा
भगवान की बाल्य लीला में बताऊं। तो अभी जन्माष्टमी आ रहा है, तो बहुत सारे हम भक्त अभी कृष्णा के बाल्य लीला में बताते हैं, बहुत सारे अलग अलग लीला। तो वहां पे हम सुनेंगे। तो क्यों पहले वो बाल्य लीला के बारे में बता रहे हैं? क्योंकि परीक्षित महाराज बोलते हैं कि आप पहले बाल्य लीला के बारे में बताओ। वो बोलते हैं अन्यादपि कृष्णस्य तोका चरितम अद्भुतम मानुषम लोकम आसाध्य तज्जातिम अनिरुद्धत। तो जैसे अनिरुद्धत मतलब जैसे कृष्ण ने पूतना को मारने की जैसे बहुत सारे रोचक कथाएं की, जब वो बाल्य बाल्य लीलाओं में की, तो वो बाल्य लीला पहले बताओ। तो बहुत बार मैं ऐसा सुन रहा था इजोल नेत्रादानाथ स्वामी महाराज के कार्यों से बहुत बार सुना। तो कभी कभी मैं सोचता था, अरे ये बाल्य लीला वो बार बार क्यों बताते हैं, या मतलब वो इट लुक्स लाइक नहीं कुछ तो ही मैन सुपरमैन, मतलब लाइक दैट वेरी नाइस। तो इनिशियल स्टेज में, मतलब अभी भी इनिशियल में हूँ, लेकिन इनिशिएशन हुआ है फिर भी तो इनिशिएशन इनिशियल स्टेज में। तो वो मुझे लग रहा था कि बार बार क्यों बताते। तो वो चीजें बहुत ही कृष्ण के ऊपर वो हमारे हृदय को शुद्ध करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वो बताते हैं। तो ये सुनना चाहिए हमें कृष्ण के लीला के बारे में, क्योंकि इतने सारे बेनिफिट है, और उसमें भी हमें बाल्य लीला के बारे में सुनना चाहिए, वो बहुत ही रोचक है। ओके, भगवान सुनते नहीं, भगवान के बारे में लोग सुनते नहीं, इसलिए उनमें एक्चुअली कोई भी कृष्ण कॉन्शियस, हम बोलते हैं ना, कृष्ण कॉन्शियस होने के लिए उनके बारे में सुनना पड़ेगा। लोग प्रैक्टिकली भगवान को भूल गए एक्चुअली। उनको कुछ फेस्टिवल भी आता है तो किस लिए फेस्टिवल लिखते हैं कैलेंडर में, छुट्टी कब है इसलिए, ओके थोड़ा टाइम मिलेगा ऐसा। लोगों को फेस्टिवल ऐसा नहीं करे भगवान के बारे में, भगवान कुछ सेवा करेंगे ऐसा नहीं, देखते हो कि कैलेंडर में कहाँ कहाँ छुट्टी है, तो उसके लिए उनको फेस्टिवल देखते फिर। तो उस दिन हम गए थे एक जगह पे, तो बोल रहे थे कि हम उनको उनका नाम पूछे थे, तो उनका नाम था भगवान बलानी। तो भगवान बलानी क्या, तो आते आते पहुंचते थे, लेकिन जब तक हम उनसे बात कर रहे थे तब तक वो बोल रहे थे कि उनका नाम है बॉब। तो आते आते हमने देखा, अरे उनका नाम तो भगवान बलानी है। तो बहुत अच्छा नाम है, तो हम उनको बता रहे थे, तो वो बोले कि एक्चुअली वो 45 ईयर्स 45 साल अमेरिका में थे ना, और उधर भी और इधर उधर से आने के बाद भी थोड़ा अमेरिकन हो गए, इसलिए उन्होंने उनका नाम बॉबी बोला, और सब कुछ बोले, सब लोग हम मुझको बॉबी बोलते बोले, और बोले भगवान सब भूल चुके हैं बोले। तो हम बात कर रहे थे कि हाँ भगवान को सब भूल चुके हैं एक्चुअली, सबको सिर्फ बॉब चाहिए, टॉम चाहिए, टॉमी चाहिए, सब कुछ अलग 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 नाम चाहिए, सब कोई भगवान भूल चुके। तो क्यों भूल 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 चुके हैं वो, क्योंकि सुनते नहीं। तो प्रभुपाद का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि प्रभुपाद ने इतने सारे मंदिर खोले हैं, और भागवतम लिखा है, अलग अलग बुक्स लिखे, उसके माध्यम से हम भगवान के बारे में बोल सके। अगर हम बोलेंगे तो हम दूसरा कोई तो सुनेगा, कोई नई भी है सुनने को तो एटलीस्ट बोल सकते हैं। खुद से बोल सकते हैं। और अभी ऐसा ऑनलाइन क्लासेस रहता है, कोई सामने सुनने के लिए हो या नहीं, लेकिन हम बोल सकते हैं। या एटलीस्ट रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं। तो बोलने में कुछ दिक्कत नहीं है। चैतन्य चरण प्रभु एक बार ऐसे ही क्लास दे रहे थे, ऑनलाइन क्लास। तो देते देते अदर जो पार्टिसिपेंट है वो बहुत सारे डिस्कनेक्ट हो गए, और उनको पता ही नहीं कि अरे हम डिस्कनेक्ट हो गए, वो बाकी सब डिस्कनेक्ट। तो फिर भी वो क्लास दे रहे थे, ले रहे थे। फिर 15-20 मिनट हो गए, 20 मिनट के बाद उनको पता चला अरे वो ऑलरेडी डिस्कनेक्ट हो गए, और वो बोलते जाते हैं। उनको बहुत अच्छा लग रहा था, उन्होंने वो श्लोका भी बहुत अच्छा लगा था उनका, और उनको, और उसके बारे में बोलने में उनको बहुत अच्छा लग रहा था, कृष्ण के बारे में कथा करने। तो उसके बाद उनको पता चला अरे लोग डिस्कनेक्ट हो गए। तो वो फिर कनेक्ट हो गए, और फिर हो गया। तो उसके बाद में वो सोच रहे थे, अरे मुझे कृष्ण के बारे में बोलने के लिए ऑडियंस रहनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो तब से उन्होंने तय किया कि मैं जो भी लेक्चर बोलूंगा वो रिकॉर्ड करूंगा, जो भी बोलूंगा, सामने ऑडियंस हो, कभी कभी सोती हो, कभी नहीं हो, फिर भी मैं क्या करूंगा, हर एक लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। उसके वजह से मैं मेरा भगवान का गुणगान चालू रखूंगा। और इसलिए अभी उतना सारा उनका रिकॉर्डिंग है,
कि बहुत सारा, तो हम भी कभी-कभी मतलब रिकॉर्ड करते हैं या ऑनलाइन ज़ूम पे, पता नहीं ऑडियंस क्या कर रही है, सो रही है, जाग रही है या किधर-उधर जा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट हम हमारा तो कीर्तन हो जाएगा। तो उसके वजह से हम भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, गुणगान कर सकते हैं और उसके लिए आचार्यों का कहना जो है शास्त्रों में उस वो पढ़ सकते हैं। और प्रभुपाद के जो मंदिर है, जैसे मंदिर में हर बार हम जाते थे तो बेल बजाते थे और उधर बैठते थे। तो मैं पापा को पूछता था कि क्यों बैठते हैं? बोले ऐसा नहीं, बैठना पड़ता है। तो मुझे इस्कॉन में आने के बाद पता चला कि जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो भगवत भगवत कथा सुननी चाहिए और इसलिए बैठना चाहिए। तो बाद में बहुत चीज़ हमें बाद में पता चलती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे। तो ये समय हो गया है तो हम यहाँ पे विराम देंगे। बहुत धन्यवाद मुझे कुछ भगवान के बारे में बोलने का अवसर दिया। शिल प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्ण।